मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आज का एक दिन का जो स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मीटिंग था वो अटेंड करने के लिए हमारा बीच में पार्टी का पोलिंग ब्यूरो मेंबर कॉमरेड जी रामकृष्णन आए हैं और कॉमरेड सुजन चक्रवर्ती एक्स एमपी है कोलकाता से, वो भी हमारा पार्टी का सेंट्रल कमेटी मेंबर है। तो आज ये पार्टी का मीटिंग हुआ, मीटिंग का बारे में जो है और नेशनल सिचुएशन का ऊपर में पार्टी का अंडमान का और अंडमान निकोबार में कई मुद्दे पर जो है बात करने के लिए ये प्रेस मीट बुलाया। आप सभी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अंडमान निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ओर से आपको स्वागत करता हूँ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट कॉमरेड सुजन चक्रवर्ती, ओके, नो ही विल आल्सो, ओके, कॉमरेड जी रामकृष्ण पोलिंग ब्यूरो मेंबर will speak to you. Our party committee of Andaman Nicobar Island meeting was held today. Myself, our party central committee member XMP Sujan Chakravarti from Bengal and other leaders, you know, Ayyappan, Chandrachudan, Gaurav Hamaji, we all attended the committee meeting. The meeting decided to hold demonstration, agitation campaign in the month of February 22 to 28 in Andaman Nicobar Island, as the call given by the party at the All India level also. Apart from the local issues, livelihood issues of the Andaman Nicobar Island, earlier we stressed, we continue to demand elected legislature for the Andaman Nicobar Island. It's a long-standing demand. Party Central Committee Politburo gave a call to organize agitation campaign at the all India level against the budgetary policies of the BJP government at the center. According to us, the budget submitted in the parliament is not for the interest of the people. It's for the corporate companies. A day before the budget, economic survey was placed before the parliament. The next day, budget was presented. What was said in the economic survey? The growth of our country, growth of economy in our country cannot be depending upon export. Only by increasing domestic consumption, economic growth can be made here. But in the budget, will not inspire domestic consumption. The budget neither will help the economic growth nor will solve the problems of the poor people. See, on all the issues, the budget presented by Nirmala Sitharaman on behalf of the BJP government center had reduced, cut short the allotment to the social welfare schemes. The Mahatma Gandhi Rural Employment Program, that is the important program for the rural aggregates, landless aggregates laborers. I think the BJP government center want to scuttle the entire scheme. In 2021, around 1,21,000 crores of rupees was allotted for this scheme. Last year, 89,000 crores of rupees. This time in the present current year, the present budget, only 60,000 crores of rupees is allotted. What does it mean? They want to scuttle it. Secondly, in 2019, during the election, what did BJP leaders say? We will try to double the income of the farmers. Now they have cut the
subsidy to the fertilizer. They have cut the subsidy to the farmers. Prime Minister Kisan Fund, when it was started 3 years back, the beneficiaries were around 11 crores, they said. Now only 3 crores of farmers have benefited. They have cut short allotment to the allotment under the Kisan Fund also. See, in health sector, you all know, in India, 67% of the budget health expenditure comes out of pocket of the people. Only 33% government is spending. In spite of it, Government of India has cut short, reduced the allotment to the health sector also. On education also, Government of India has cut short the allotment to the education also. Social welfare, last year total allotment was 5 lakh crores of rupees last year. This year only 3.5. Nearly 1.5 crores of 1.5 lakhs of crores of rupees has been cut in the social welfare schemes. So the Government of India, their budget, not for the people but for the corporate companies. For example, during the Corona period, because of Marxist Party, so many democratic movements demanded, people lost their earnings. We demanded supply of free rice, wheat. They have started Garib Kalyan Anna Yojana. 5 kilo of rice, 5 kilo wheat free of cost. Another scheme was there. Rice, wheat at the subsidized rate. A kilo of rice cost 3 rupees. A kilo of wheat cost 2 rupees. Now they have abolished the subsidized scheme. Now only that 5 free rice, 5 kilo free rice, 5 kilo of free wheat. That's being so implemented. So again I say they have cut short the food subsidy also. And in the industry, all over the country, small MSME, micro and small scale industries, they give jobs to the nearly 60 to 70% of the workers are working in the MSME. What's the problem? They don't get raw materials, cost of raw materials have risen. They don't get market. They are demanding the GST rate cannot be same for corporate companies and MSME. They are demanding to reduce the GST rate. They are demanding reduced rate for raw materials. Apart from that, you must know, earlier the loan which they borrow, MSME, interest was 6%. Now they have increased the interest to 10%. So budget is not for MSME also. But in the last 2 years, I must tell you, top 1% of the people in our country, that is corporate and rich people, they have amassed the wealth generated in the last 2 years to the tune of 45% of the wealth generated. It has gone to top 1% of the people. But on the other hand, 50% of the bottom people in our country, they pay indirect tax 6 times of the 10% of the top people. So the budget submitted in the parliament is not for interest of the people, it is given the interest of the corporate. So taking all this into account, party central committee has given a call to organize agitation campaign all over the country, including Andaman Nicobar also, on these demands. Fix, impose wealth tax, inheritance tax on the corporates. Reduce the abolish the tax on GST on food items. Increase the allotment for the Mahatma Gandhi Rural Employment Program also. So all these issues, our party has decided to go for demonstration. And also, BJP government center using the governors in non-BJP ruled states, either to topple the government or to sabotage the functioning of the state government, where it is in Kerala or Tamil Nadu or Maharashtra or Pondicherry or Bengal, other places.
So federalism is at stake, and also judiciary is the last resort for the people. Government of India wants to take over judiciary also. So all these issues, our party central committee has decided to organize agitation in the month of last week of February. This is what the party committee meeting held here also. We have decided, the committee has decided to organize agitation in the Andaman and Nicobar Island also. Do you want to ask any questions? Question would be Okay. So you will say Yes. from Yeah. Sujan Chakravarti, ex-MD. You will speak. I will have just 2 points to make. One is on behalf of the party center of CPIM to congratulate the working class and the workmen all over Andaman for their fight for justice and fight for the right cause of the daily rated workers of PWD. You know, in the meantime, that on the 19th December, after a protracted and continuous struggle by the workmen and the union led by CITU, finally the court has given order of enhancing the wage as per the Minimum Wage Act to be implemented within 2 months. And since it is on the 19th December, up to 19th February is the time limit, we hope that it must be implemented by the government along with the revised opinion of the court to implement it in all government related departments. So this is a big victory of the workmen of Andaman, and for that purpose the credit must be given to the leadership of the mass movement and the trade union CITU in Andaman. We believe that the Andaman administration must accept and do implement at the earliest the order of the court. Otherwise, the movement will continue by the workmen. Number 2, मेरा हिंदी अच्छा होता नहीं, कोई अच्छा होगा हिंदी में। मैं हमारा ऑल इंडिया सेंटर के ओर से बधाई देना चाहते हैं अंडमान का वर्किंग क्लास एंड द वर्कमेन, particularly in the PWD department, the daily rated workers वो हमारा CITU के ओर से लड़ते थे, उनको वेज रिविजन के लिए, जस्टिस के लिए। फाइनली 19th December the court ordered to implement the wage। वो तो सिर्फ PWD के लिए नहीं, all other departments, हल मिला के all other departments, governments daily rated workers के लिए उनका जल्दी से जल्दी लागू करना जरूरत है। फिर भी वो होगा नहीं तो CITU के लीडरशिप में बड़ी तरफ से आंदोलन तैयार होगा। We will urge upon the administration to do implement it right immediately. Again, हमारा बधाई to the working class people of the Andaman। दूसरा बात है जो हमारा लीडर आपके साथ बोले थे, दिस बजट, ये बजट अच्छे तरीके से नहीं है। क्या बोलता है, हमारा मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स रिबेट दे देता है। कितना आदमी हमारा इंडिया में इनकम टैक्स के आधार में आते हैं? Only 6%। Only 8 crore people out of 140 crore people, 8% people इनकम टैक्स के आधार में आते हैं। पहला बात यही है। दूसरा बात है, उधर भी उनका बेनिफिट
कुछ ज़्यादा होगा नहीं लोअर मिडिल क्लास के लिए, थोड़ा एडवांटेज अपर मिडिल क्लास में होना चाहिए, होगा, उनका जरूरत थे नहीं. Okay, for lower middle class and the middle class, some sort of benefit could be made, fine. But simultaneously, ये बजट में बहुत घाटा कर दिया, बहुत. फूड सब्सिडी 31% घाटा दिया. फर्टिलाइजर सब्सिडी 22% घाटा दिया. एजुकेशन बजट का क्या बोलता है, बजट प्रपोजल, और हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ऑल इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जो सोशल सेक्टर्स है वो अच्छा तरीका से 12 तो नहीं, कमती कर दिया. फिर भी मुद्रास्फीति तो 6% प्लस 7%, 8% आसपास में होता है. So real wage cut, real cut in investment, real cut in proposal is very tough for the people. मनरेगा 31% घटा दिया, 33% घटा दिया. सो अच्छा होता नहीं. वो बोलता है कि आवास योजना में थोड़ा 3% बढ़ा दिया. कैसे आवास योजना में 3% बढ़ा दिया? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन वो तो होता है 7-8%, तो रियल टर्म्स में कमती पड़ गया. फिर भी 2022 में हर फैमिली, सब लोग को बिल्कुल पक्का घर, ये तो प्राइम मिनिस्टर्स का क्या बोलता है, उनका कमिटमेंट है. तो उसीलिए उस तरफ से वो अच्छा होता नहीं. मेरा डिमांड थे जीएसटी on essential commodities, food commodities, medicine, कुछ किया नहीं. ये गवर्नमेंट चलते हैं अदानी के लिए. बहुत बड़ा परेशान हमारा देश में आदमी को होगा बिकॉज ऑफ दिस बबल इन अदानीज स्कैम. Modi ji obviously is part and parcel of that. তোমাদের আন্দামান কিছু বলার থাকে তোমাদের বলে দেওয়া উচিত. ওকে, এনিথিং তোমার কিছু বলা থাকলে বলো. ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে আন্দামান কে নিয়ে. जैसा आपको बताया गया ये बजट का बारे में, ये बजट का खिलाफ में प्रोटेस्ट करना है करके हमारा पार्टी का सेंट्रल कमेटी का आह्वान पर 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक अंडमान निकोबार में सारे एरियाज में विरोध प्रदर्शन और मास धरना हम आयोजित करेंगे. ये बजट का जरिया से जो अधिक बोझ जो है आम आदमी का ऊपर में थोपा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको विरोध करना चाहिए. क्योंकि ये बजट जो है कोई साधारण आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया. ये साधारण आदमी का जो है तकलीफ़ें बढ़ गया, और काम करने वाला लोग है और कर्मचारी है, वर्किंग क्लास है, सबका ऊपर में अधिक बोझ डाल दिया. इसको जो है विरोध हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम करेंगे. उसका जो है पार्टी का 22 तारीख से 28 फरवरी तक की जो प्रोग्राम अंडमान निकोबार का डिगलीपुर से लेकर के सारा जगह जो है हम ये प्रोग्राम करने के लिए आज का जो है स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डिसाइड किया. और इसका अलावा जो है आपको पता होगा जो अंडमान निकोबार में जो ट्रेड यूनियंस का जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा जो 19 दिसंबर 2022 में जो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का जो जजमेंट आया था, अंडमान निकोबार में काम करने वाले सारे डेल रेटेड मजदूरों को 1/30 का जो बेनिफिट देने का
ये 19 को जो है उसका 2 महीना का टाइम पार होएगा, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाने से तो ये ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट होएगा, हजारों मजदूरों को जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियन CITU को, क्योंकि CITU का लीडरशिप में बहुत सालों चला जो है आंदोलन का बाद में और कोर्ट का लड़ाई का बाद में जो है ये बेनिफिट मिला है, तो ये बेनिफिट हासिल करने के लिए आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक दिवसीय जो राज्य समिति का जो मीटिंग है उनको बधाई दिया, अभिनंदन किया, और हम आशा करते हैं कि आने वाला दिनों में भी जो अंडमान निकोबार का श्रमिक वर्ग का जो है मांगों को लेकर के जो है CITU और जो बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे जुड़ेंगे, तो संगठन लड़ते रहेंगे और पूरा जो वर्किंग क्लास है हमारा साथ जो है खड़े हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वो सभी लोगों को अभिनंदन पेश करते हैं। सर, जो प्रोटेस्ट आप लोग फरवरी 22 से 28 तक कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली रहेगा और या फिर उसको आवर्स में रहेगा या सुबह से शाम तक रहेगा, ऐसे है? नहीं, कंटिन्यूसली नहीं है, तो प्रोग्राम डिसाइड करेगा, मास डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, धरना करेगा या मतलब स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करेंगे, तो इसको विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम विरोध करते रहेंगे। ये जो बजट के खिलाफ में ये जो मुद्दा है 5-6 इश्यूज है इसका ऊपर में जो है विरोध करने के लिए ये प्रोग्राम का जो आह्वान किया पार्टी का केंद्रीय समिति। आप लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये धरना प्रदर्शन जो है हम लोग हमारे अंडमान निकोबार में किस जगह पर होगी? नहीं, वो तो डिसाइड नहीं, हमने आज पार्टी का जो है स्टेट कमेटी में सेंट्रल कमेटी का कॉल का अनुसार जो है स्टेट कमेटी में आज डिसाइड किया कि नीचे का जो है पार्टी का जो है सब जगह में एरिया कमेटी, ब्रांच कमेटी वगैरह है, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है 22 तारीख से 28 तारीख तक विभिन्न जो है कार्यक्रम करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो अपना अपना एरिया का कमेटी जो है डिसाइड करके वो करेंगे, और लीडर्स जो है पोर्टलर से भी बाकी जगह से भी अटेंड करेंगे। तो हम लोग सब जाएंगे, हम जाएंगे, उमेर चंद्रचूड़न, उमेर गौरंगम्मा जी है, उमेर रामजीवन सरकार, उमेर लक्ष्मण राव है, हम लोग एक प्रोग्राम में अटेंड करेंगे। तो इस प्रोटेस्ट को लेके हम एक सवाल पूछते हैं, जैसा अन्य पार्टी जो है काफ़ी सारे यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप भी क्या ऐसा कुछ यात्रा निकालेंगे आप भी? वो तो कौन पार्टी किया, खाली कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा जो है, जोड़ो यात्रा किया पूरा इंडिया में किया, यहाँ में भी उन लोग प्रोग्राम किया, उनका इंटरनल प्रोग्राम है, उनका इंटरनल जो है इशू है, तो एक प्रोग्राम किया, बस इतना ही है। कोई अंडमान का जो है साधारण आदमी का कोई इशू लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं किया। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है, यहाँ जो है सामान का उतना दाम बढ़ रहा है, यहाँ 13,000 पोस्ट खाली रखा है, तो जलन मुद्दे पर जो है ना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी जो है कुछ भी नहीं कह रहे, वो लेकर के ना कोई यात्रा कर रहा है ना कोई आंदोलन कर रहा है, इधर में बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर रहे, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कर रहे हैं। तो जोड़ो है, वो तो भारत जोड़ो यात्रा आप लोग देखा है, उनका एक ग्रुप किया, दूसरा ग्रुप जो है हम उसमें कमेंट करने नहीं, मतलब उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो उन लोग जो है रिजोल्व करने के। सर, DRM का जो 1/3 का था 19 को, जैसा आपने कहा 2 मंथ्स हो जाएगा, ऐसे सुनने में खबर आ रहा है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ऐसा कुछ है आप लोगों को खबर? उसका बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकता। तो कम से ओहो कम से ये इश्यू को लेके बहुत डिस्कशन हो रहा है। अब तक जो है फरवरी तक टाइम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करेगा करके हम नहीं समझता है। क्यों बोले से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट का है, उनका कंसेंट में ये ऑर्डर किया है। अब वो ऑर्डर का कॉपी बनता है तो और एक बार आपको भेज देगा। दैट वाज टेकन बाय द कंसेंट ऑफ द असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। इसलिए हम नहीं समझता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा गलत काम, अगर करने से भी हम लोग जो है उसके लिए भी प्रिपरेशन है। वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड द कैविएट इन सुप्रीम कोर्ट, उसको लेके भी आप देखा है कुछ मनोज पाल वगैरह उसको समझता नहीं है कि क्या है, समझ में नहीं आता। उसने जो हम लोग कैबिनेट में फाइल किया उसको लेके LG फाइल किया करके बोला है, लेकिन अभी तक
मेरा जो नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक गया नहीं, वो गया जाएगा करके हमारा उम्मीद भी नहीं है। तो इसलिए और उसको ऊपर और भी इशू है, ईपीएफ का है, दूसरा है हम लोग का एजुकेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। अभी 7 तारीख को भी हम लोग सबका बोनस के लिए प्रोग्राम करेगा, जो म्यूनिसिपल में प्रोग्राम करने का है, तो उधर 1,500 मजदूर इधर में जो मीटिंग करके वो लोग भी डिसीजन लिया, उनको भी ये डिसीजन लेना, पंचायत में करने का है। तो ये सबको मिलने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगा। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी डिसीजन लेने दो, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है वर्कर को ये बेनिफिट मिलना, उसके लिए हम लोग ये एजुकेशन जारी रखेंगे। सर, जहाँ तक आपने अभी जो डीआरएम वर्कर्स की जो बात की, तो सुनने में ये आ रहा है कि जब से आप लोगों ने इसका प्रचार किया है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इससे नाराज है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। और जैसा आप लोग जो है CITU और उसी तरह BMS वाले भी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो है जितने भी डीआरएम वर्कर्स हैं उनका सॉल्यूशन उन्होंने सॉल्व किया है।